Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have started the chapter 5, that is morphology of flowering plants. In this, the first we have talked about the roots, the root system. Now we will move forward to the upper part, and in the upper part we are going to talk about the main thing in this, that is stem. Okay, so stem is the thing that we are going to talk about in the upper part of the plants. So as earlier I've told you, this if it is a seed and the embryo is growing, so from the embryo the upper part is called as plumule and the lower part is called as radicle. Okay, so here what we are going to talk about, that the stem originate from the plumule part, as here it is also told that it arises from the plumule of the embryo of a germinating seed. Okay, so this is what from where the stem arises. Okay, the next thing is what actually stem is. Stem है क्या, ठीक है, we have to talk about that, what actually stem is. So the stem is the ascending part, the stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaf, flower, fruits, everything that the plumule carries. It is on the axis, it is on the axis. This is the root. Okay, this is what a root is like. Okay, and this is what stem is. Okay, on the stem there is branches, there is leaves, there are fruits, okay, there are flowers. So everything is on the ascending part of the axis, that is the stem. Okay, now the next thing we are going to talk about, a new thing we are going to talk about, is the part from where the leaves or branches or fruits are arising. ये जो पार्ट आपका जो होता है, जो आपकी स्टेम में जिस जगह से, जिस पॉइंट से जो स्टेम है वो निकल, जो आपकी ब्रांचेस है वो निकल रही हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको इस वाले पिक्चर में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपकी ये पॉइंट, ठीक है, ये ब्रांच इससे निकल रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक है. एक और ब्रांच दिखाते हैं, इसमें आपकी ये पॉइंट क्या है, नोड है. स्टेम पे वो पार्ट जहाँ से नया आपका कोई भी पार्ट निकल रहा है. इट कैन बी ब्रांच, इट कैन बी लीव, इट कैन बी फ्रूट और एनीथिंग, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एज नोड. एंड द पार्ट बिटवीन द नोड्स, the part between two nodes is called as internode. Okay, internode मतलब nodes के बीच में. This is what node is. 1 minute. This is node, and the middle part between two nodes is called as internode. Okay, are you getting it? I'm just going to show it from the diagram, this diagram. So just understand this. Okay, this is the shoot part, and here you can see they have shown it. It is the node part from where this leaf is arising. Okay, this is also a node, this is also a node. Everywhere it is node, here node, here it is node, everywhere from where anything is arising from the stem, that is the node. And the middle part of between two nodes, as it has shown here, this part is between two nodes is called as internode.
Okay, so here also this is internode, this is internode, this is what internode is. Okay, so this is what internode and nodes is. Okay, चलिए just rub it off. Okay, then we are going to talk again about it. So here it is written, the stem bears node and internodes. The region of the stem where the leaves are born are called nodes, and internodes are the portion between two nodes. Clear about it? Okay, now the next thing we are going to talk about is stem bear buds, which may be terminal or axile. Okay, now we are going to talk about this. So स्टेम में आपकी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो कि टर्मिनल हो सकती हैं और एक्साइल हो सकती है. सबसे पहले तो हम टर्मिनल और एक्साइल समझ लेते हैं. टर्मिनल मतलब ऊपर, ठीक है, दिस इज़ टर्मिनल पोजीशन, टॉप पे. एक्साइल मतलब अगर यहाँ पे आपकी इस ब्रांचेस में से निकल रहा है, ठीक है. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपके इसको रब करके यहाँ बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर फ्लावर सबसे ऊपर उग रहा है, ठीक है, या तो कोई बड मतलब कली को बोलते हैं, तो ये वाली आपकी टर्मिनल पोजीशन हो गई. इफ़ अ ब्रांच इज अराइजिंग एंड अ फ्लावर इज born here, so this position is the axile position or axillary position. Okay, are you getting it? Just clear about the positions. Terminal is the topmost position and axile is the sidewise positions. Okay, so I'm going to rub this off. Okay, so what bud is? Bud, we can see it here from this diagram. Can you see it? The bud is here. So on the point, this point node, there is a bud. Bud से क्या निकल सकता है? आपका नया फ्लावर निकल सकता है, या नई आपकी लीव्स निकल सकती है, कुछ भी, कोई नई आपका पार्ट निकलेगा बॉडी का, ठीक है, प्लांट की बॉडी का. सो ये आपकी बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है. एक्साइल हो सकती हैं, ये जो साइड में लगी हुई हैं आपकी इधर उधर, ठीक है, ठीक है, या फिर आपकी सबसे टॉप पे हो सकती है, टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है. सो देयर कैन बी डिफरेंट पोजीशंस फॉर दैट. सो बर्ड्स प्रेजेंट होती है स्टेम के ऊपर. स्टेम इज़ जनरली ग्रीन व्हेन यंग. जब कोई नया पेड़ उगना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे उसकी स्टेम ग्रीन होती है, हरी होती है. एज इट ग्रोज इट बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मोटा होता जाता है, वुडी होता है, लकड़ी वाला आपको दिखाने लगता है, ब्राउन कलर दिखाई देने लगता है आपको. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं मैंगो के प्लांट का, मैंगो के ट्री का, सॉरी. सो व्हेन इट इज़ यंग, जब वो स्टार्ट ही होता है तो उस टाइम पे उसकी स्टेम्स ग्रीन होती है, और जैसे ही वो बड़ा होता है, आपने बड़े तो प्लांट देखे होंगे, छोटा ना देखा हो तो कोई बात नहीं, बट आपने बड़ा तो देखा ही होगा. तो दैट इज़ अ वुडी डार्क ब्राउन कलर स्टेम, right? But when it is young, it is green in color. Okay, so slowly the wood arises. Not at the starting it arises. It start when the plant start growing adult, as an adult. Okay, now we are going to talk about the functions of the stem. Main functions. The stem is spreading out branches bearing leaves. So उसमें leaves उगते हैं, आपके flowers, fruits ये सब उगते हैं. And also the stem conduct water, minerals and photosynthesis.
जो स्टेम होती है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाने का काम करती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो खाने को स्टोर करने का भी काम करती है। जैसे हमने लास्ट रूट्स में पढ़ा था कि रूट्स आपके खाने को स्टोर करने का काम कर रही हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ स्टेम्स आपकी खाने को स्टोर करने का काम भी करती हैं, सपोर्ट के लिए भी काम करती हैं, प्रोटेक्शन देने का भी काम करती हैं, ठीक है। और कुछ में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काम लेती हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच any other than the reproductive part, the part like stem, leaves generate a new plant, that is called as vegetative propagation, right? जैसे रोज़ की डंडी लगा देते हैं तो वो एक नया प्लांट उग जाता है, जबकि नॉर्मली सीड्स वगैरह से प्लांट उगते हैं, बट यहाँ पे एक स्टेम से भी आपका एक नया प्लांट स्टार्ट हो गया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है, ठीक है। सो स्टेम्स अलग अलग तरीके से आपके यूज़ हो सकते हैं, फंक्शंस उनके अलग अलग हो सकते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, so what the stem has modified it into. So there are many different types of adaptations stems have gone through. So first, the stem may not always be typically like what they expect it to be. तो जैसे कि स्टेम नॉर्मली देखने को हमें मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टेम आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आप उनको हमेशा सोचते हैं कि स्टेम ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सो उन्होंने अपने आप को कुछ अलग फंक्शन करने के लिए भी मॉडिफाई कर लिया है आजकल के प्लांट्स में। ज़रूरी नहीं है कि स्टेम जो हम सोचते हैं कि वो एक सीधी सी डंडी है, वैसी की वैसी आपको हर उसमें देखने को मिलेगी, नहीं, आपको अलग अलग तरह के भी स्टेम्स देखने को मिलती हैं। सो देयर आर मैनी अंडरग्राउंड स्टेम्स। नॉर्मली हमने क्या देखा है, स्टेम कहाँ होती है, ग्राउंड से ऊपर होती है, अबव द ग्राउंड, बट मैनी ऑफ द स्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड, ओके। सो स्टेम्स लाइक पोटैटो इज़ नॉट अ रूट। पोटैटो आपको कहाँ से मिलता है, ज़मीन के नीचे से मिलता है, बट ये रूट नहीं है, ये स्टेम है, ठीक है। इसको ट्यूबर भी कहा जाता है। पोटैटो की जो आपका स्टेम है, जो आपको खाने के लिए जो आप पार्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूबर, ठीक है। जिंजर इज़ वन ऑफ द स्टेम। टर्मरिक, हल्दी, जमीकंद या फिर जिमीकंद हम इसे बोलते हैं, ठीक है। कोलोकेशिया, ये आपका एक अलग तरह का प्लांट है जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं मिलता। ये सारे आपके स्टेम्स हैं, ये रूट नहीं है, ध्यान देना, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो खाना अपने आप को इन्होंने मॉडिफाई कैसे किया है, इस स्टेम ने खाने को स्टोर करने के लिए, फॉर द फूड स्टोरेज। सो द एग्जाम्पल यू कैन लर्न, ओके। देन नेक्स्ट, they also act as the organ for pollination to tide over condition unfavorable for the growth. तो स्टेम जो होती है वो आपकी एक तरह से ऐसे भी एक्ट करती है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। तो ये जो आपकी स्टेम जब आपका खाना स्टोर करने लग गई हैं, तो वो कैसे, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, प्लांट ऊपर से बिल्कुल उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। खाने के लिए जो उसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर टेम्परेचर चाहिए या फिर पानी चाहिए, वो सब प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा, तो उस टाइम पे सरवाइव करने के लिए वो ये जो स्टोर करके उन्होंने फूड रखा था, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक में, जिमीकंद में, ये सब जो स्टोर फूड किया था, ठीक है, उसको वो यूज़ कर सकती हैं इस अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे, और अपने आप को ये प्लांट ज़िंदा रख सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ तो ह्यूमंस में भी लागू होती है ना। ह्यूमंस में तो हमने पढ़ रखा है कि ह्यूमंस जो है फास्टिंग कैसे कर पाते हैं, व्रत कैसे रख पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी खाने को स्टोर करके रखती है। और जब भी हमें जैसे फास्टिंग रखनी होती है या कभी ऐसा हो गया कि हमें खाना नहीं मिल पाया, तो उस टाइम पे हम मर नहीं जाएंगे, हमारी बॉडी सर्वाइव कर लेती है। कैसे कर पाती है, जस्ट बिकॉज वो स्टोर फूड जो था उसको यूज़ कर लेती है। उस हार्ड सिचुएशन में हमारी बॉडी इस तरह से सर्वाइव कर लेती है अपने आप को, ठीक है। तो ये जो स्टोर करके रखा है, ये स्टेम ने अपने आप को फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ करवाया। वो क्यों करवाया, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे इस खाने को जो स्टोर किया है स्टेम में, उसे यूज़ कर पाएँ वो,
ठीक है। तो इस तरीके से भी यूज़ हो सकती हैं ये, हमेशा नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो रहा है, बट जब अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस तरह से भी एक्ट कर लेती हैं। पेरिनेशन का मतलब भी ये है कि सर्वाइव कर लेना एक तरह से। ओके। फिर आपकी एक और तरीके का स्टेम में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, स्टेम टेंड्रिल्स बन जाती हैं। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, आपने बेलें देखी होंगी प्लांट्स की बेल, कुछ आपके जैसे तोरी, लौकी, कद्दू, कुकुम्बर, पम्पकिन, कद्दू ही कहते हैं इसे, वाटरमेलन हो गया, इन सब की बेल होती हैं। तो बेल आपकी ऐसे ऐसे करके, चलो ऐसे मोटे मोटे से इनके, ऐसी तो पत्ती नहीं होती वैसे, बट ऐसे ऐसे चलिए पत्ती हैं इनकी। बट आपने देखा होगा इनमें आपके ऐसे स्पाइरल फॉर्म में भी आपके लगे होते हैं, है ना, देखा होगा ना आपने, ये ताकि ये क्लाइंब कर पाएँ, चढ़ पाएँ। जहाँ पे भी ये लग रही हैं ये बेलें, वहाँ पे ये जैसे अगर इन दीवार पे चढ़ना है तो इस तरीके से ये स्पाइरल फॉर्म से ये पकड़ सकती हैं उसे। आपने देखा होगा अगर आपके घरों के आसपास लगी होगी या आपके घर में लगी होगी, ठीक है। ग्रेप वाइन मतलब जो आपके अंगूर की बेल होती है वो भी इस तरह की होती है, उसमें ये स्पाइरल, इन्हें बोलते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं ये किससे अराइज हुई हैं, स्टेम से। कौन से पार्ट से बनी है, स्टेम से बनी है, तो इसे इन्हें स्टेम टेंड्रिल्स कहा जाता है। तो कुछ स्टेम्स अपने आप को टेंड्रिल के रूप में भी मॉडिफाई कर चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड से निकली है। ऑब्वियसली एक्सिलरी बर्ड तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि यहाँ पे आपकी एक स्टेम निकल रही थी, यहाँ से बर्ड निकली है, तो ये साइड वाली बर्ड है ना, इसी से आपकी क्या बन गई, ये आपके स्पाइरल्स बन गए, टेंड्रिल्स बन गए, ठीक है। टिप वाले से नहीं बनते, एक्सिलरी ये साइड वाली बर्ड से बनते हैं ये, ओके। एंड दे आर सिलेंडर, मतलब पतले पतले से आपके सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, स्पाइरल होते हैं, घूमे हुए होते हैं, है ना, देख रहे हैं आपको शेप इनकी। ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं क्लाइंब करने के लिए, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया मैंने गार्ड्स का, जैसे लौकी को इंग्लिश में बोला जाता है बॉटल गार्ड, ठीक है। तो गार्ड वर्ड यहीं से आया आपका। ये जो कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन हैं, इन सब की बेलें होती हैं, ग्रेप वाइन की बेलें होती हैं, तो ये सब में ये आपके देखने को मिलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है। ओके, इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, देन few of the stems have axillary buds that may be modified into woody, straight and pointed thorns. कुछ प्लांट्स में बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, जैसे आपने नींबू का पेड़ अगर देखा हो, या आपने बोगनविला देखा होगा, तो बोगनविला तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, इनमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है। नींबू का पेड़ में भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। वो कांटे किससे बने, कांटों को क्या कहते हैं, थॉर्न्स बोला जाता है। और ये थॉर्न्स किससे बने हैं, ये स्टेम से बने हैं, स्टेम की एक्सिलरी बड से बने हैं, एक्सिलरी बड से बने हैं ये, ठीक है। तो ये पहले एक्सिलरी बड रही होगी, फिर ये थॉर्न में मॉडिफाई हो गई, तो ये लकड़ी जैसे स्ट्रेट आपके पॉइंटेड कांटेदार आपके थॉर्न्स बन जाते हैं। प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कांटे क्यों बनते हैं, ताकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, जो चरने वाले चरते हैं जो एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स को भी खा लेते हैं ना वो, तो कांटे होंगे तो वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए थॉर्न्स उग जाते हैं। तो बोगनविला और सिट्रस प्लांट, सिट्रस मतलब जिनमें आपका ये नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब आपके सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं। तो इन सब में आपके थॉर्न्स आपको देखने मिलते हैं। थॉर्न्स किसका, इनमें एग्जाम्पल है स्टेम के मॉडिफिकेशन का है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल दूसरे उसमें भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन में स्टेम टेंड्रिल्स हैं। टेंड्रिल्स किससे बनी हुई, स्टेम की मॉडिफिकेशन से बनी है। यहाँ पे थॉर्न्स जो हैं वो बोगनविला और सिट्रस में किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। ओके, कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एरिड रीजन्स में, मतलब सूखे इलाकों में, स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है फ्लैटेंड बॉडी में। जैसे कि आपने कैक्टस देखा है, ऐसे ऐसे कैक्टस देखे होंगे आपने, ठीक है।
ऐसे कैक्टस निकल आते हैं, इनमें छोटे छोटे से थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है ये आपको कैसी लग रही है? ये स्टेम है, बट ये किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है प्रॉपर। इनमें लीव्स तो है ही नहीं, इनकी लीव्स इन थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, इनमें ये थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई है। तो इनकी स्टेम कहाँ है? ये स्टेम जो ये वाली जो आपकी फ्लैट बॉडी है, इसे स्टेम है ये, और ये ग्रीन कलर की होती है। तो लीव्स नहीं होती है, तो लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लीव्स है ही नहीं, तो इसमें इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा वो यहाँ पे होता है, स्टेम में होता है इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये ग्रीन कलर की है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और यहीं पे इनका खाना बनेगा। ठीक है, तो ये आपके कैक्टस को ओपेंशिया कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, ओपेंशिया। एक यूफोरबिया है, ये भी एक तरह का आपका कैक्टस का ही टाइप है। ठीक है, कैक्टस जैसा ही देखने को लगता है ये आपको देखने में। ठीक है, यूफोरिया, इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ है कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो गई है। इसके अंदर स्टेम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉर्मली लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वहाँ पे खाना बनता है। बट इनमें एग्जांपल्स में यूफोरबिया और ओपेंशिया में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है आपका। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आपने इतने सारे बहुत पढ़ लिया। अभी और भी हैं कुछ स्टेम्स जो होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे कि ग्रास, स्ट्रॉबेरीज़। ठीक है, ये नीचे नीचे ही फैल जाती हैं। कैसे फैलती हैं? जैसे यहाँ पे ग्रास लगी हुई है, आपने देखी भी होगी कि ग्रास बहुत जल्दी फैलती है। अगर ग्राउंड में लग जाए ना, एक जगह पे लग गई है, ठीक है, ऐसे घास लगी हुई है, फिर ये फैल जाती है। ये साइड में भी लग गई, ठीक है, फैल गई। तो नीचे नीचे फैलती रहती है ये और अपने साथियों को बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। स्टेम कहाँ है? नीचे, ज़मीन के नीचे है। ये आपकी मिट्टी है और मिट्टी के नीचे स्टेम बढ़ती जा रही है, ये स्टेम है। ठीक है, एक मिनट, ढंग से एक और बनाती हूँ इसे अलग अलग कलर से ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आप समझ आ रही है ये बात? देख रहे हैं आप इसमें कि यहाँ पे आपका ये स्टेम ग्रो हो रही है नीचे नीचे। ऐसी स्ट्रॉबेरी में भी होता है, ऐसी ग्रास में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये नीचे नीचे ही स्प्रेड टू न्यू नीचेस। नीचेस का मतलब यहाँ पे क्या है? एरिया, नए नए एरियाज़ में फैलती रहती है और जो इनके पुराने पार्ट्स होते हैं वो मरते रहते हैं और नए नए पार्ट्स फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, मिंट और जैस्मिन में भी यही चीज़ चलती है कि ये भी इस तरह से नीचे नीचे सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस निकालते रहते हैं और मेन एक्सिस फिर आपकी हवा में आके, देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। ये तो नीचे नीचे से गई हैं आपकी। ठीक है, जैस्मिन मिंट में आपको देखने को मिलता है, एक मिनट, हाँ, जैस्मिन मिंट में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि ऊपर से मिट्टी है, ऊपर ऊपर ही फैल गया ये। ठीक है, फिर नया प्लांट बन गया। ठीक है, ऊपर से ही फैल गई, फिर नया प्लांट बन गया। तो इस तरह से लिटिल ब्रांचेस ऊपर ऊपर फैलती रहती हैं। ठीक है, तो ये मिंट और जैस्मिन वगैरह में आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो जैसे ही जहाँ पे स्टेम टच होगी वहाँ पे ये रूट पकड़ लेंगी, रूट आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने यही तो बोला कि स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, जहाँ पे भी मेन एक्सिस टच हो रही है, आफ्टर ग्रोइंग एरियल फ्रॉम सम
टाइम आर्चेस डाउन टू टच द ग्राउंड। तो आपकी लिटिल ब्रांचेस निकलने लगती हैं जो हवा में आपका पार्ट है, और उस जैसे ही वो टच होता है ग्राउंड में नया पार्ट निकल आता है। ठीक है। अ लिटिल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच इंटरनोड बियरिंग रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड पिस्तिया एंड इकॉर्निया। अब ये यही चीज़ आपको जो आपके पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं उनमें भी देखने को मिलती है। तो सेम टू सेम यही जो मिट्टी में हो रहा है वही चीज़ आपको प्लांट में देखने को मिलेगी, कि जैसे ये आपका पानी है। ठीक है। तो ये आपका प्लांट उग गया। ठीक है। इसने जड़ फैलाई अपनी, इसमें से स्टेम्स निकल रही है, ये स्टेम आपकी गई और इसने नया वो उगा दिया। ठीक है। इसमें स्टेम्स निकल रही हैं, इसी की लेटरल ब्रांच गई और इसने इस तरह से प्लांट उगा दिया। ठीक है। तो पिस्तिया और इकॉर्निया ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है, जिसमें से रोजेट ऑफ लीव्स, रोजेट मतलब ये जो ऐसे करके गुच्छा निकल रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं रोजेट ऑफ लीव्स। और टफ्ट ऑफ रूट्स मतलब बहुत सारा गुच्छा एक रूट्स का ऐसे निकल आता है इनमें से। ठीक है। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जिसमें फैलने का काम करती हैं। ये स्टेम्स आपकी एक तरह से रिप्रोडक्शन करवा रही हैं, फैला रही हैं प्लांट को, स्प्रेड कर रही हैं प्लांट को। ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसिथेनम शायद आपने सुना नहीं है, बट अपने बनाना और पाइनएप्पल सुन रखा है। ठीक है। उसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं आपकी बेसल पार्ट से। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे ये आपका बनाना का प्लांट है, आपने बनाना का देखा होगा, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उसकी। ठीक है। ऐसे लीव्स होती हैं। इसके जो स्टेम के नीचे ये रूट्स जैसे होते हैं ना, इसी में आपका नए नए पेड़ उगने लगते हैं। इसी से आपका गुच्छे गुच्छे बन के ऐसे ऐसे करके नए नए पेड़ साइड में उगने लगते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ हो गया ये। ठीक है। तो लिटिल ब्रांचेस निकलती हैं अंडरग्राउंड पोर्शन से, नीचे से निकल रही हैं ये। ठीक है। और ये स्टेम के ही पार्ट है, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये स्टेम के पार्ट से ही हो रहा है। ओके। रूट से नहीं हो रहा है, नीचे से ज़रूर निकल रही है, बट ये स्टेम्स कैसी हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स ही हैं। तो अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। देख रहे हो आपने, हॉरिजॉन्टली ऐसे चला गया और नया प्लांट उगा दिया। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड टू गिव राइज टू लीफी शूट। तो दिख रहा है आपको, लीफ बन गई यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये नए नए प्लांट्स उगा दें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको थे जिसमें एक ही स्टेम का पार्ट आपका नए नए पूरे इतने सारे गुच्छे बना देता है प्लांट्स के। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसका काम आ रहा है। आपको बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपके स्टेम्स वगैरह भी काम करती हैं रिप्रोडक्शन का। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपने अब देख ली कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई कर लिया है स्टेम ने अपने आप को जिस चीज़ के लिए, अदर देन जस्ट वुडी थिंग दैट वी सी इन द ट्री और प्लांट। ठीक है। सिर्फ उसके अलावा भी स्टेम्स के फंक्शंस हैं। ठीक है। वो खाना स्टोर करने के लिए भी यूज़ में आ रही है, सपोर्ट भी दे रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में भी मदद कर रही है। ठीक है। प्रोटेक्शन भी देने का काम कर रही है, जैसे थॉर्न्स के रूप में, है ना। तो इतने सारे इनके फंक्शंस हो गए हैं स्टेम्स के। तो ये सारे फंक्शन हमने मॉडिफिकेशन में पढ़ लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, थैंक यू।